कोल घोटाले में एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री दसरी नारायण राव के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कांग्रेस ने कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है और इसलिए कोयला घोटाले की निष्पक्ष जांच की लगातार जो हम मांग कर रहे थे, लेकिन ये आज जो छापे पड़े हैं वो सीबीआई जांच के आदेश पिछले फरवरी में दिए गए थे हमारी शिकायत पर। उसके बाद 15 महीने के बाद पड़े हैं, तो 15 महीने के बाद तो सीबीआई के हाथ में कुछ नहीं आएगा और इसलिए हम चाहेंगे कि सीबीआई मनी ट्रेल करे। 50 लाख करोड़ के खनिज संपदा, कोयले का भंडार 140 निजी कंपनियों को मुफ्त में दिया, ऐसा सरकार बताती है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि उसका मनी ट्रेल जब तक नहीं होता कि भ्रष्टाचार के रूप में कितना पैसा किसने किसको दिया और वो पैसा कहाँ छुपाया है, तब तक ये घोटाले का सही सच बाहर नहीं आएगा और इसलिए इसका मनी ट्रेल हो, हम मांग करते हैं। दूसरी मांग हमारी है कि कोयला घोटाले में सीधे प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि वही कोयला मंत्री थे और उनके ही हस्ताक्षर से हर कोयले का खदान आवंटित हुआ है जिस पर जांच हो रही है। और उस समय के कोयला सचिव जो गुप्ता जी थे, उनकी पूछताछ सीबीआई करना चाहती है, लेकिन सरकार सीबीआई को जांच भी करने नहीं दे रही है और पूछताछ की इजाजत नहीं दे रही है। यह बहुत ही बेहद गंभीर मामला है और उच्चतम न्यायालय इसका संज्ञान लेगा कि पीएमओ ने और कोयला मंत्रालय ने और पूरी कांग्रेस की सरकार ने अश्विनी कुमार के केबिन से किस तरह सीबीआई का रिपोर्ट बदलवाया था, ये देश के सामने आ गया, उनको जाना पड़ा। अब पीएमओ के द्वारा सीबीआई पर दबाव बनाकर और सीबीआई को इजाजत नहीं दी जा रही है कि वो पूर्व कोयला सचिव की जांच करे, पूछताछ करे। हम मांग करते हैं कि कोयला सचिव की पूछताछ की तुरंत इजाजत पीएमओ दे दे, सीबीआई पर दबाव न बनाए, सीबीआई के राह में रोड़े न लगाए और सीबीआई से भी हम मांग करेंगे कि केवल छापों से काम नहीं चलेगा। ये घोटाला है कि धन कहाँ छुपा है, क्योंकि 50 लाख करोड़ की भू संपदा, कोयले का भंडार किसी को मुफ्त में मिलेगा कांग्रेस के ज़माने में, ये कोई विश्वास नहीं कर सकता। तो जो रिश्वत का मनी पैसा है वो ढूंढने की बात है, वो ढूंढे और उसके लिए पारदर्शी जांच हो, ये हमारी मांग है। इंग्लिश BJP welcomes the CBI raids carried on the former Congress Minister for Coal, Mr. Dasri Narayan Rao, and Congress MP Naveen Jindal. But this is too little and too late. On our complaint, the CBI started inquiry 15 months ago. And when the news was out that CBI has been ordered the probe to probe the coal scam, after 15 months they will get nothing out of this raid. So this should not turn out to be a formality. Therefore, BJP demands that the CBI should go for money trail because it's a monumental corruption. 140 companies were given on platter coal reserves worth 50 lakh crore of rupees. It is unheard of. And on paper they say that has been allotted free of cost. In Congress regime, you don't get the ration card also without corruption. Then how is it possible that these coal reserves were given on a platter without any condition and without any charges? So the money has not gone to the government treasury, but definitely to the ruling party.
And that's why we demand that CBI should go after money trail. Who paid whom? Who paid how much? Who received how much? And where they have stashed away their money. Because this is a monumental corruption, and unfortunately there is massive cover-up also. We have seen how the government in Ashwini Kumar's chambers changed the whole report of the CBI, took out the soul of the report and changed to save the Prime Minister. Because the Prime Minister was the coal minister and he is the signatory to each and every allotment during 2006 and 2009. So all the blocks which are being investigated by the CBI today bear the signature of Shri Manmohan Singh, and that is the most serious aspect. That is why government is covering it up. And what is happening is, now they are putting pressure and not giving permission to CBI to inquire the former coal secretary Mr. Gupta. CBI wants his deposition, but government is prohibiting it. It is yet another assault on an impartial inquiry, which is being monitored by the Supreme Court. Even though Supreme Court is monitoring, the government is putting hurdles into CBI inquiry. We demand that government should immediately permit CBI to inquire the former coal secretary and whoever officers they want. And we also demand that they must immediately give remaining files, because important files are still lying with the government and government is not handing over them to the CBI. We demand that all these files should also be handed over to the CBI. So CBI should go for money trail, government should allow CBI to probe the coal secretary, and government should hand over the files. That's our demand. एक मिनट दूसरा भी एक खुलासा है आज मैं बता रहा हूं पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आडवाणी जी ने कल अपने पार्टी के पदों से इस्तीफा देने के लिए एक खत पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ जी को लिखा था। और जैसे आपको पता है कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने ये इस्तीफे की पेशकश को नामंजूर किया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की कल बैठक हुई, उसमें उसके लिए ऑफिशियल रेजोल्यूशन भी हुआ है। लेकिन इस सारे अंदरूनी बीजेपी के मामले में कांग्रेस और कुछ हित संबंधी जानबूझ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम ले रहे हैं। हम ये खुलासा करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, ये स्पष्टीकरण दे रहे कि संघ ने इस प्रकरण में केवल इतना ही कहा था कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको जल्दी इसको सुलझा जाए। लेकिन संघ ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के इस मसले को निश्चित रूप से जल्दी ही सुलझ लेंगे और मसला सुलझेगा और आपको जल्दी उसकी अच्छी खबर मिलेगी। ऐसा है, पार्टी के नेता लगातार आडवाणी जी के संपर्क में है और आपस में भी विचार विनिमय करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही इस मसले को सलटाया जाएगा, ठीक किया जाएगा, उसका समाधान होगा और उससे बीजेपी और मजबूत होकर उभरेगी। इससे बीजेपी और मजबूत होकर उभरेगी, ये भी हमें पूरा विश्वास है। थैंक यू, धन्यवाद।